हम ये सेशन सारा के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑल्दो उसने रिमाइंड नहीं किया रिकॉर्डिंग के लिए, पर फिर भी ठीक है। ओके, so like animals, plant also need energy. The plant get this energy by the process of respiration. Plant also use oxygen of air for respiration. Huh? Really? We were never told this in our childhood. Did we? Did we know this? Plants also use oxygen. We were always told plants take in carbon dioxide and they give out oxygen. But this piece of information was incomplete. They of course take carbon dioxide and release out oxygen. But for this activity to happen, they need to live. And for living, they consume oxygen, beta ji, because they need energy for all this process to do. So what do? The oxygen that they make, उसमें से थोड़ा सा they keep it for themselves. थोड़ा सा कि हम अपने जीने के लिए वो ऑक्सीजन रख लेते हैं. They don't take oxygen from air. वो अपने ही प्रोडक्ट में से जो उन्होंने बनाया है, उसी में से थोड़ा सा ऑक्सीजन दे कंज्यूम टू लिव. मतलब पूरा ऑटोमेटेड मशीन है ना. हम कहते थे ना, बचपन में हम पढ़ते थे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर इंटरडिपेंडेंट. हम अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं तो वो ऑक्सीजन बनाकर हमको दे रहे हैं. लेकिन हम ये भी तो देख सकते हैं कि अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो बाहर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन अपने लिए खुद भी बना सकते हैं. दे डोंट नीड इट फ्रॉम एयर, है ना. बट जोक्स अपार्ट, यहाँ पर बात ये है कि प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए एंड दे ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. बट दी कार्बन डाइऑक्साइड दैट दे रिलीज, दे क्योंकि उन्हें इनटेक भी चाहिए, है ना, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी कर रहे हैं, तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ही अपने प्रोसेस भी तो कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. राइट और नॉट, है ना बच्चे. देखिए, so oxygen and carbon dioxide are respiratory gases. The respiration in plants differ from that in the animals in three respects. All the parts of plants like roots, stem, leaves perform respiration individually. सब अलग अलग सांस ले रहे हैं. Imagine like my arms are breathing alone, my head is breathing alone, है ना, लेग्स अलग से ब्रीथ कर रही हैं. तो मतलब इसे रिलेट करके देखें तो हर ऑर्गन अलग एक ब्रीदिंग ऑर्गन है. तो इसका मतलब स्टोमेटल ओपनिंग तो सबके पास होनी चाहिए. राइट और नॉट, होनी चाहिए ना. On the other hand, an animal performs respiration as a single unit. For my complete body, my one respiratory system is inhaling inside, है ना. During respiration in plants, there is a little transport of respiratory gases from one part of the plant to the other. So respiration in plants के during बहुत छोटा सा transport होता है of respiratory gases or one part from one part to another. Stem very little give to roots, है ना. Leaves very little give to stem. On the other hand, respiratory gases are usually transported over long distances inside an animal during respiration. So मेरे अंदर तो they are traveling long to reach the cellular site actually. The respiration in plants occur at a very slow rate. On the other hand, the respiration in animals occur at much faster rate. Because we are mobile, we need to have more energy. We need to have more oxygen. तो इसीलिए our breathing rate is faster than the plants that are there at one place. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं? Next, plants get oxygen by diffusion. Plants have a branching shape, so they have a quite a large area in comparison to their volume. So whatever is their volume, their surface area is very large. Although if I tell you that plant ऐसे भी तो उग सकता था, लेकिन प्लांट यहाँ से भी ब्रांच्ड है, यहाँ से भी ब्रांच्ड है, तो उसने कितना सरफेस एरिया बढ़ा लिया अपना. द स्टेम हेयर, उसका एक्सपोजर कितना ज्यादा है टू एयर. राइट और नॉट, है ना बच्चे, बात आ रही है समझ में. Therefore, diffusion alone can supply all the cells of the plant which with as much oxygen as they need for respiration. तो इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है. Their full body surface area is acting as a respiratory organ, जहां से वो गैसेस को डिफ्यूज इन करा रहे हैं. अंडरस्टूड और नॉट बच्चे, क्लियर और नॉट. तो जितना रिक्वायर्ड है उन्हें ऑक्सीजन,
उतना उनके, क्योंकि बहुत लार्जर सरफेस एरिया है, इसीलिए वो उस पूरे सरफेस एरिया को यूज करते हुए अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं, और इसीलिए ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं कर रही है फॉर लॉन्गर डिस्टेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स. अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट? डिफ्यूजन अकर्स इन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट. तो इन तीनों में डिफ्यूजन से गैसियस एक्सचेंज होता है. नाउ हाउ डज इट हैपन इन रूट्स? Air is present in between the particles of soil. We know soil is not one solid particle, वो भी उसमें भी air trapped है. The roots of the plant take the oxygen required for respiration from air present in between the soil particles by the process of diffusion. So if these are the roots, तो soil particles के बीच में जितनी भी gases होंगी, उसका gaseous exchange यहाँ से हो सकता है रूट से. Right or not? The extensions of the epidermal cells of a root are called root hair. जो भी epidermal cells होते हैं, last epidermal cells जो होते हैं, epidermis means the outer layer, जो उसकी extension होती है fine hair like, उसे हम root hair कहते हैं. Right बच्चे? The root hair are in contact with the air in the soil, so they come in contact with this air. Oxygen diffuses into the root hair and reaches all other cells of the root for respiration. तो यहाँ से डिफ्यूजन करेगी उसके अंदर, और यहाँ से वो अपनी रूट्स के ही बाकी सारे पार्ट्स में स्प्रेड हो जाएगी. आ रही है बेटा बात सबको समझ में कि नहीं आ रही? हाउ इज इट डन? Each and every line is very important when you read through the chapter बेटा, क्योंकि assertion and reasoning कहीं से भी बन सकता है. Carbon dioxide gas produced in the cells of the root during respiration moves out through the same root hair by the process of diffusion. The way oxygen has gone in, इसी तरीके से oxygen will come, carbon dioxide will come out as well. Thus, respiration in root occurs by the diffusion of respiratory gases through the root hairs. So, it is the root hairs जो कि respire कर रहे हैं, gaseous exchange कर रहे हैं for roots. It has been found that the land plants die if their roots remain waterlogged for a considerable time. अगर यहाँ सारे में waterlogging होगी तो they'll die. Why? Why? क्योंकि फिर उन्हें फ्री एयर नहीं मिलेगी ना, इनके पास गिल्स नहीं है ना कि वाटर में से ऑक्सीजन अलग कर सके. This is because too much of water expels all the air from these conditions. The roots will respire anaerobically, producing alcohol. This may kill the plant. Note this down, beta, very important point, that it is because of the alcohol made during the anaerobic respiration of plant, if it is kept in waterlogged situations, which kills the plant. Understood or not, बच्चे? नोट कर रहे हो सब लोग? Yes. एक्सक्यूज मी मैम. नैतिक, गुड मॉर्निंग. हाँ जी तेजस बेटा बोलो. मैम अगर जो प्लांट है वो वाटर लॉक्ड हो जाता है मैम, तो फिर वो वाटर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. गिल्स नहीं है ना उसके पास, वाटर से ऑक्सीजन अलग करने के लिए गिल्स चाहिए ना, है ना? Ma'am, but can it not use the oxygen from other parts of the plant? बेटा वही तो बात कर रहे हैं कि सरफेस एरिया बहुत बड़ा है ना उसका प्लांट का, तो वो अपने अपने लिए जितना ऑक्सीजन ले सकते हैं वो ले रहे हैं, पर बहुत ज्यादा मिलकर बांटकर काम करने का स्कोप नहीं है प्लांट के स्ट्रक्चर के पास, है ना, क्योंकि ब्रीदिंग रेट भी स्लो है. नेक्स्ट वन, कहाँ थे हम? In order to understand the respiration in stems of the plant, we should remember that the soft stems, small herbaceous plants may have stomata in them, whereas hard and woody stems of large plants and trees have lenticels in them. तो जो फ्रेश ग्रीन स्टेम्स होती है जैसे ग्रास की हो या प्लांट्स जब बहुत यंग एज में है, तो उनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना. मैंने एक बात आपको एग्जाम्पल में पूछी भी थी कि अगर सारी लीव्स प्लग कर ली फिर भी प्लांट वोंट डाई,
लीव्स दोबारा आ जाएंगी फ्रेश ग्रीन एक प्लांट के अंदर. व्हाई इज दैट सो? दैट इज बिकॉज वो फोटोसिंथेसाइज कर सकता है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल ऑल्सो, और वहां स्टोमेटा भी है इसलिए. लेकिन जो वुडी स्टेम है उसके अंदर प्रेजेंट आर लेंटिकल्स. देखो लेंटिकल्स का स्ट्रक्चर इज गिवन टू अस. दिस इज द वन. दिस इज द साइट. Woody stem of plants or trees have lenticels for the exchange of respiratory gases. Understood or not, बच्चे? ठीक है ना? आगे चले. Lenticels is a small area of bark in a woody stem where the cells are loosely packed, allowing gaseous exchange to take place between the air and the living cells of the stem. एयर और जो लिविंग सेल्स है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था ना कि पार्क ऑफ अ ट्री में परमानेंट टिश्यूज भी हो जाते हैं, है ना? तो जहां लिविंग कंटेंट है, जहां मेरिस्टेमेटिक कंटेंट है, जहां भी एक्टिविटीज चल रही हैं, लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं, जो लिविंग पार्ट है प्लांट का, वहां तक यहीं से ही ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स. Now, the leaves of a plant have tiny pores called stomata. The exchange of respiratory gases in the leaves takes place by diffusion through stomata. Oxygen from air diffuses into the leaf through stomata and reaches the cell where it is used in respiration. The carbon dioxide produced during respiration diffuses out from the leaf into the air through the same stomata. आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? है ना? Okay. It should be noted that respiration in leaves occur during the daytime as well as night. Respiration दोनों time active रहता है. No important point to note, जल्दी से note करो. On the other hand, photosynthesis occur only on day, on the daytime. Photosynthesis morning में हो रही है, लेकिन respiration 24/7 हो रही है. Due to this, the net gaseous exchange in the leaves of the plant is as follows. पढ़े आगे, लिख रहे हो अभी? चलो नेट एक्सचेंज पढ़ते हैं अब. During daytime, when photosynthesis occurs, oxygen is produced. The leaves use some of this oxygen for respiration. तो लीव्स ने क्या किया? फोटोसिंथेसाइज किया, अपनी जो ऑक्सीजन जनरेट की थी उसी में से थोड़ा सा यूज कर लिया. एंड रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट इन एयर. तो इफ लेट्स से 100% प्रोड्यूस किया है तो उसमें से 2-3% अपने लिए रखते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एग्जांपल. और बाकी मैक्सिमम बाहर रिलीज आउट कर दिया. अगेन ड्यूरिंग द डे टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड produced by the respiration is also used up in the photosynthesis. उसको डे टाइम में बाहर थ्रो करने की जरूरत नहीं है, because actually plants need carbon dioxide. Even more carbon dioxide is taken from air. तो अपने अंदर generate भी हो रही है, फिर भी बाहर से और भी carbon dioxide inhale कर रहा है plant. The net gases exchange in leaves during the daytime is O2 diffuses out and CO2 diffuses in. तो देखो मैं बताऊं कैसे कहा मैंने आपको कि 100% ऑक्सीजन जनरेट जो हुई है लीफ के अंदर, उसमें से 98% फॉर एग्जाम्पल हैज कम आउट. ठीक है. और ऑक्सीजन विच वॉज प्रोड्यूस देयर, जो भी टोटल 100% ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वॉज प्रोड्यूस देयर, उस वो तो अंदर पूरा रिटेन कर लिया, साथ में और क्वाइट अ लॉट CO2 इज और इनहेल्ड. दिस इज हैपनिंग ड्यूरिंग डे टाइम बेटा. आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही सबको? क्या हुआ यहाँ पर? क्यों हुआ? क्योंकि जो चाहिए था सामान वो और भी ले लिया बाहर से, और जो अपने ही अंदर बना था उसे थ्रो क्यों करेंगे? चाहिए था हमको. जो हमारे काम की चीज होती है उसे हम थ्रो नहीं करते है ना, कम पड़ जाए तो और ले आते हैं. बट जो हमें बाहर एक्सेल करना है, अगर उसे हमें थोड़ा सा चाहिए तो उसे हम रख भी सकते हैं अपनी बनाई हुई चीज को ना. तो दैट इज हाउ लीव्स आर वर्किंग.
बट एट नाइट क्या हो रहा है, नाइट साइकिल क्या है, डार्क डार्क साइकिल क्या, एट नाइट टाइम नो फोटोसिंथेसिस अकर, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसका मतलब नो ऑक्सीजन इज जेनरेटेड, राइट? ऑक्सीजन नहीं बन रहा है ना अंदर अब बाहर है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सो नो ऑक्सीजन इनसाइड रात को। अब नो ऑक्सीजन, लेकिन इसको जिंदा तो रहना रात को, तो ये थोड़ा सा ऑक्सीजन इनहेल कर लेगा, क्योंकि अपनी लिविंग के लिए तो थोड़ा सा चाहिए ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसकी लाइफ प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रही है, जो अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उसका क्या होता है, दैट डिफ्यूजेस आउट, वो डिफ्यूज आउट कर जाती है एयर में रात को। आपने बचपन से ये बात मम्मी से सुनी होगी, रात को शाम को पौधों के पास नहीं जाते। हैव यू हर्ड ऑफ दिस एट योर होम? है ना, मना करते हैं ना, रात को पौधों के पास नहीं जाना। व्हाई? क्योंकि तब वो हमें फ्रेश एयर, ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस वहां लेकर नहीं, वो हमें वो सप्लाई नहीं कर रहे होते। लाइक अस दे आर आल्सो रिस्पायरिंग दैट टाइम। अंडरस्टूड और जी नॉट बेटा? मैम। तो जो नेट गैसियस एक्सचेंज है, दैट इज O2 डिफ्यूजेस इनसाइड, क्योंकि अंदर कुछ बना नहीं तो गया है नेट अंदर, एंड CO2 डिफ्यूजेस आउट, वो बाहर आया है। तो इट्स नॉट ऑल द टाइम कि प्लांट CO2 लेता है और ऑक्सीजन देता है, रात को वो हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेता है और हमारी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। आ रही है सबको बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो एक्सक्यूज अद्विका मी मैम। बेटा, बोलो। मैम मैम अगर रेस्पिरेशन डे में भी वो CO2 रिलीज क्यों नहीं करता? अरे बच्चे, उसको वो चाहिए भी तो बेटा, सुबह उसने जो CO2 बनाया वो क्यों बाहर थ्रो करेगा, उसको वो चाहिए तो वो तो और ले रहा है, तो अपने ही बनी हुई चीज को क्यों थ्रो करेंगे? नहीं मैम, आई एम सेइंग रेस्पिरेशन से when it is taking oxygen as well, so then CO2 should be released. CO2 should be released, but it is important for one of the important life process of plant, तो उसको CO2 चाहिए, क्योंकि उसने फोटोसिंथेसाइज करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो, और उसको CO2 चाहिए, तो उसने खुद अंदर ही अपने CO2 बनाया। एंड हम उसको प्लांट को बुद्धू नहीं बोलेंगे कि खुद बना के अपना तो थ्रो कर रहा है बाहर से, फिर इनहेल कर रहा है कि नहीं बेटू? तो जो उसने खुद ने बनाया है वो उसको क्यों थ्रो करे? आ रही है ना बच्चे बात समझ में? चले अभी Yes, आगे, ma'am. Yes. बोलो बेटा, बोलो बच्चे, और किसी को क्या डाउट है? नथिंग? चलूं आगे? ओके, नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की डिस्कशन करते हैं। अच्छा, जो मैंने डे में और नाइट में बताया, दैट इज कॉल्ड एज द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था? बोलो जल्दी से, मैं पिटाई कर दूंगी, 3 बार बता चुकी हूँ मैं तुम लोग को ये। मैम ड्यूरिंग द डे। वाह, देखो लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द डे। और बेटा रात को कौन लाइट देगा उनको? कहाँ पर हो रहा था, कहाँ पर, साइट क्या है लाइट रिएक्शन की? चलो, उसको 5 ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे इस टेस्ट में, कोई 2 और 3 मार्क्स कट नहीं होंगे अगर बिना पढ़े। अद्विका पढ़ना नहीं, Please, चीटिंग नहीं अद्विका, अद्विका नो। मैम सब प्लीज। ऊपर देखो, एक प्लांट सुनो सुनो सुनो, मैं प्लांट बोला कृष्ण ने, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कहा? ये तो बहुत जनरलाइज्ड हो गया। आर्या, आर्या बोलो, थाइलाकोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, लाइट या डार्क? लाइट अरे वाह, शाबाश, गुड गुड, 5 पॉइंट्स। नहीं नहीं, अभी 5 नहीं, अभी 2.5। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है? Laminate. डार्क रिएक्शन नहीं बता? Ma'am, ओहो, laminate. नो। अभी आत्विका इस पे Piranha. -2 हो जाना चाहिए था आत्विका। डोंट जस्ट ट्राई, इफ यू नो इट ओनली देन टेल। रजत, अभिनव, तेजस, क्या बात हो गई? आर्यदित्य, तू क्या कर रहा है? कुछ पूछ रही हूँ मैं, बोलो। नहीं मालूम है किसी को, और 2.5 मार्क्स नहीं चाहिए। अभिनव, चीटिंग नहीं करनी है बेटू, बुक में नहीं पढ़ना। Ma'am, matrix. Ma'am, cytoplasm में होता है. तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? मैं इसके भी पॉइंट नहीं देने वाली हूँ, वो मैट्रिक्स क्या है उसको क्या कहते हैं?
कितने गंदे बच्चे हो। तो मैं 3 बार बता चुकी हूँ इस चैप्टर में ये बात कि 9th का इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो बुक में आ जाता है 10th में, फिर भी नहीं याद कर रहे हो, ना ड्रॉ कर रहे हो, ना याद कर रहे हो। ग्रैना स्ट्रोमा याद है किसी को क्या थे? Yeah. तो बताओ प्रिशा फिर डार्क रिएक्शन किस में हो रहा है? I'm strong. स्ट्रोमा में। क्योंकि थाइलाकॉइड जो आर्या ने बताया उसी के स्टैक्स को आप ग्रैना कहते हो, उनके अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा है। लिख लो इसको, जैसा अभी ना फटाफट अब नोट कर रहा है ना, Ma'am, ऐसा नोट कर लो सब जल्दी से। one mark. हम्म। Oh, okay. 1 मार्क? व्हाई 1 मार्क? Answer. अच्छा, इतने हिंट के बाद नो मार्क्स, ओनली आर्या इज गेटिंग 2.5, बाकी किसी को मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था गेस वर्क चल रहा है इधर तो। मैम आप जल्दी अगर जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, इसको कंप्लीट करो। मैम आप अगर फ्री के मार्क्स दे रहे हो ना, इसका मतलब टेस्ट हार्ड ही होता है हमेशा। मैं सीबीएसई नहीं हूँ कि टेस्ट मुश्किल है तो मार्किंग स्कीम आसान है, ऐसा मैम कुछ तो नहीं होता है। 2.5 तो आपके टेस्ट में मिलेंगे, वो भी चलो सीधे। अभी रेस्पिरेशन इन एनिमल्स करें। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की एक ग्लिम्स तो आप लोग 8th क्लास के एक लास्ट पैराग्राफ में लेकर आए हो ऑलरेडी, है ना? याद है अर्थवॉर्म्स कैसे रेस्पायर करते थे अपनी मॉइस्ट स्किन से? इसीलिए अर्थवॉर्म को आप एयर में निकाल कर छोड़ दो टेबल के ऊपर तो वो थोड़ी देर में इट विल डाई, क्योंकि उसको मॉइस्चर के बिना वो एयर एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा, उसकी स्किन मॉइस्ट होनी ही चाहिए। ऐसे ही कॉकरोचेस कैसे ब्रीथ करते हैं, उनकी बॉडी में टाइनी होल्स होते हैं जिन्हें हम स्पिरैकल्स कहते हैं। स्पिरैकल से उनके अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है। बर्ड्स के पास नोस्ट्रिल्स होते हैं हमारी तरह ही और लंग्स होते हैं। फिशेस के पास गिल्स होते हैं, वो वहां से रिस्पायर करते हैं। और क्या, वेल्स एंड डॉल्फिन्स, वो मैमल्स हैं, के पास भी लंग्स हैं हमारी तरह, तो वो वाटर से ऊपर आते हैं और अपने एयर होल्स को ओपन करते हैं एंड देन उससे इनहेल करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे हमने, है ना? राइट? तो उसी की एक्सटेंशन है यहाँ पर, तो चलो डिस्कस करते हैं। इन सिंपल यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो अब बेचारा जो सेल ही एक ही ऑर्गेनिज्म ही एक ही सेल से बना है, उसको कोई और रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज करेगा। राइट और नॉट? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए द सेल मेम्ब्रेन इज ओनली एक्टिंग एज अ मीडियम फॉर डिफ्यूजन, सो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। बाकी मैक्सिमम ऑर्गन एनिमल्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। लाइक अर्थवर्म्स आई हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड कि उन्हें मॉइस्ट स्किन चाहिए होती है। दे लिव इन द सॉइल, यूज देयर स्किन टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट दिस एयर इज द एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल बेटा, है ना? They like themselves covered with the soil from everywhere. No, have you heard this that earthworms eat their way? Do you know this? उन्होंने आगे जाना है तो वो ऐसा डिग करके खोद के आगे नहीं जाता जैसे रैबिट आगे जाता है, वो उस मिट्टी को खा जाते हैं और उससे रास्ता आगे बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? है ना? तो दे ईट देयर वे, इसका मतलब दे लाइक देमसेल्व्स टू बी कंप्लीटली सराउंडेड बाय सॉइल। तो जैसा अगर आप ऐसा इमेजिन करो कि अगर एक रैबिट बरो डग कर रहा है, तो क्या वो सारी जगह से स्किन से सब जगह से टच कर रहा होगा सॉइल को? नहीं, उसमें और सॉइल में गैप होगा। अर्थवर्म डजंट लाइक दिस, क्योंकि उसको ब्रीथ ही अपनी स्किन से करना है, तो इट विल ईट इट्स वे ताकि वो कंप्लीटली सॉइल से सराउंडेड हो। अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? है ना? विजुअलाइज कर पा रहे हो ना माइंड में? नाउ aquatic animals like fish, prawns, mussels, they have gills as the respiratory organs which extract oxygen dissolved in water and take away carbon dioxide from the body. तो gills कैसे काम करते हैं? Gills are like filters with sponges. तो देखा है फिश, फिश कैसे, ऐसा देखो फिश, ये फिश का गिल्स है यहाँ पर साइड में, है ना? यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ से अंदर एंटर करती है पानी की स्ट्रीम, पानी अंदर एंटर करता है, और यहाँ पर फिल्टर्स हैं जहां पर स्पॉन्जेस लगे हुए हैं, स्पॉन्जेस जैसे टिश्यूज लगे हुए हैं जो कि ऑक्सीजन को यहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं।
और फिल्टर कर देते हैं पानी को, और जो पानी बचता है ना उसको बाहर थ्रो कर देते हैं। अरे मैंने क्या बोला, एक मिनट रुको 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 रुको, इसको ऑपोजिट करना था। पानी इधर माउथ से, यहाँ से, और यहाँ गिल्स पे स्पॉन्जेस, और यहाँ गिल से पानी बाहर जाता है। ठीक है बेटा, ये जो फ्लैप ओपन होता है ना फिश का साइड में, यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा H2O, यहाँ से H2O अंदर चला जाएगा मुंह में, इसीलिए फिश मुंह खोल के स्विम कर रही होती है, राइट। और यहाँ पर वो एब्जॉर्बिंग मटेरियल होगा जो कि उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा। आ गई ना बेटा बात समझ में कि नहीं आई? और ये ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, प्लीज कोई ऐसे नहीं समझना H2O की O पी जाता है, ऐसा नहीं होता। मुझे बचपन में ऐसे ही लगता था, मैं कहती थी फिर थोड़े टाइम बाद पॉन्ड में सिर्फ H2 क्यों नहीं रह जाती, क्योंकि दिस इज वाटर ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड विद वाटर, तो H2O के साथ O2 डिफ्यूज्ड है, मतलब पूरा H2O है, उसमें साथ में O2 है, तो ये O2 कंज्यूम करता है, H2O ही रहता है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है वहां पे कोई भी। ठीक है, चले अभी आगे। नेक्स्ट, इन दी इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउसफ्लाई एंड मॉस्किटोज, टाइनी होल स्पिरैकल्स होते हैं, और उन स्पिरैकल्स का बड़ा अच्छा नेटवर्क होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो अगर ये थोरैसिक पोर्शन है एक कॉकरोच का, ऐसे ही होता है ना कॉकरोच उसके फेदर से कवर, जो कोई 11th तो कॉकरोच का डायसेक्शन वैसे भी आएगा। तो आ रहा पहले ही नो कर रही है। नहीं, टीचर ने पूरे बोला कॉकरोच नहीं का होता। डायसेक्शन नहीं होता, बस उसकी लेग निकालते हैं और इसके टिश्यू को पकड़ते हैं। अभिनव भी मना कर रहा है, मुझे भी नहीं लेनी है, बाय। इतना तो करना पड़ेगा बेटा, एक अपनी चीक के अंदर से एक छोटा सा टिश्यू टीयर अप करके देना ही पड़ेगा आपको, और एक कॉकरोच की टांग तो तोड़नी ही पड़ेगी बेटा, इसके बिना फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे प्रैक्टिकल में, अगर 11th में बायो लेनी है तो। ठीक है, तो चले अभी आगे। अब मैं क्या कह रही थी, ये मैं इसके विंग्स हटा देती हूँ क्योंकि अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। कॉकरोच की बॉडी में यहाँ पर ना छोटे छोटे से होल्स हैं, और मेरे से इतना सुंदर नेटवर्क तो नहीं बनेगा, पर मैं बना के दिखाती हूँ कि कुछ इस तरीके से एक नेटवर्क बना होता है, पूरी बॉडी को यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है, ये ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जहां जानी है वहां ले जाओ। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो these tiny little openings are called spiracles, और इनका पूरा एक अच्छा ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं बेटा इसे, ट्रैकियल ट्यूब का पूरा एक बहुत अच्छा नेटवर्क होता है इनसाइड द कॉकरोच, जिससे उसकी छोटी सी बट पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है। दिस इज विद एवरीथिंग, नॉट जस्ट द कॉकरोच, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउसफ्लाइज, इन सबकी बॉडी में यही सेम काम हो रहा होता है। एयर ट्यूब्स होती है, ट्रैकियल ट्यूब्स, और स्पिरैकल्स, छोटे छोटे होल्स। ठीक है बच्चे, वर्ड कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, लिख लो, याद कर लो। अगर आपके आंसर में टाइनी लिटिल होल्स हैविंग अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होगा तो 2 में से हाफ मार्क ही मिलेंगे बायो के आंसर में बेटा जी। हालांकि आपने कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया कि छोटे छोटे छेद हैं और अंदर ट्यूब्स का नेटवर्क है, पर ये कीवर्ड मिसिंग मींस नो मार्क्स। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? इसीलिए कीवर्ड्स को लिखकर याद किया करो। चलिए अभी आगे। Next, the respiratory organ of the land animals such as man, human, bird, lizard, dog and frog etc. are the lungs. उनकी lungs। अच्छा, frog एक ऐसा एनिमल है, एम्फीबियन, एक एम्फीबियन है। एम्फी means both and bian means bio, which means life. So he has got both lives, one in water and one on land. जब वो टैडपोल था, छोटा सा टैडपोल, जब वो था, इसकी छोटी सी लिम्स भी बना देते हैं ऐसे, बट जैसे जैसे लिम्स आती जाती है टेल गायब होती जाती है, तो टेल छोटी बनानी चाहिए थी हो जाए, क्योंकि लिम्स, हाँ
रहने ही देते हैं। तो ये जो छोटा सा टैडपोल था, अरे ऐसे क्या देख रही हो बेटा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब टैडपोल टैडपोल जैसा नहीं बना तो क्या करूं? ऐसा रानी से देख लिया इसको। मुझे नहीं आता बेटा टैडपोल बनाना, कहाँ से आपको नहीं बनाऊं? देख रहे थे, ये मेरा भाई। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, ओके, फिर देख उसको हैरानी से देख ले, कोई बात। तो मेरा टैडपोल कहाँ गया? ये रहा मेरा टैडपोल। तो जो ये टैडपोल होता है, जब तक ये पानी में है, क्योंकि ये टैडपोल है, क्योंकि ये फिश जैसा है, दिस इज फिश लाइक नो। तो ये जो टैडपोल है, जब तक पानी में है तब तक इसके पास गिल्स है। जिस दिन इसकी लिंक्स लिम्स पूरी डेवलप हो गई, डेवलप होकर इतनी भी स्ट्रांग हो गई कि वो उसका वजन उठा पाए, और ये टेल गायब हो गई और लंग्स एक्टिवेट हो गई, उसी दिन फुदक के ये फ्रॉग बन के बाहर निकल जाएगा लैंड के ऊपर, राइट? एंड ऑन लैंड, वंस द लंग्स हैव एक्टिवेटेड, उसके बाद वो कभी वापस गिल से ब्रीथ नहीं करता। व्हाट अ ड्रास्टिक चेंज इन बॉडी, नो? और गिल्स देन स्टार्ट टू वैनिश। पर उसको तो पानी में भी जाना है वापस, जहां वो बना था, बड़ा हुआ था। तो उसको पानी में जाना है वापस, तो वो अप जाएगा और वाटर में मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करेगा अपनी। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ऐसा नहीं लग रहा, इसकी एक लाइफ साइकिल में 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है ना? गिल्स थे जब वो पानी में था, बाहर आया लंग्स हो गए, वापस जब भी उसको पानी में जाना है तो उसको अपनी योगा पावर्स दिखाकर ब्रीथ होल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो जाता है और अपनी स्किन से ब्रीथ करके आ जाता है। ठीक है बेटा जी, आ गई सबको बात समझ में? सिंपल थी एकदम। तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हमारे पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, जिससे हम सांस लेते हैं। और कैसे लेते हैं, चलो इसे डिटेल में पढ़ते हैं। पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े उन सब में कॉमन क्या है। कॉमन इज दे हैव लार्ज सरफेस एरियाज टू गेट इनफ ऑक्सीजन। सबने सरफेस एरिया बढ़ा रखा था ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन कैन बी इनहेल्ड और maximum gaseous exchange can be done. All respiratory organs have thin walls for easy diffusion. अब कोई एक सेल की लेयर, उसमें गैस अंदर चली जाए या गैस उसी से बाहर आ जाए, क्या उसके लिए उस लेयर का पतला होना जरूरी नहीं? ऑब्वियसली यस, मोटी सी होगी तो अंदर जाएगी कैसे गैस, है ना? तो इसीलिए सबके पास बहुत थिन वॉल्स होती हैं। Then all respiratory organs like skin, gills and lungs have rich supply of blood vessels. मतलब कहने का ये है कि कैपिलरीज, वो जो फाइन ब्लड कैपिलरीज होती है, वो फाइन ब्लड कैपिलरीज जो है वो सब, इन जितने भी ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की है, सब में जहां से वो ब्रीथ कर रहे हैं वहां पर बहुत अच्छा सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स आता है। क्यों? क्योंकि जहां से भी ऑक्सीजन आ रही है वहां से उसे ब्लड में जरूर भेजना है, क्योंकि ब्लड ही उसे हर सेल के पास लेकर जाएगा। गॉट इट और नॉट? क्लियर है ये बात सबको? चलें अभी। ओके। The animals which live in water use the oxygen dissolved in water to carry out respiration. The amount of dissolved oxygen in the water is low as compared to amount of oxygen present in the air. Therefore, the rate of breathing in aquatic animals is much faster than the terrestrial animals. जल्दी से लिख दो, क्योंकि इस पे एक assertion reasoning एग्जाम में देखा गया है। Rate of breathing in aquatic animals, ये faster होगा, right or not? Then rate of breathing in terrestrial, terrestrial means land animals, इस तरीके से ये ग्रेटर देन का साइन लगाकर ये मार्क जरूर कर दो। अंडरस्टूड और नॉट?
चलो बच्चे, हो गया ये नोट? आगे चले। A faster rate of breathing provides more oxygen. मतलब अगर हम इस बात को एक बार लिटरली समझ लें तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम जो एनिमल्स हैं वो ऐसे ब्रीथ कर रहे हैं, अगर हम 1 सेकंड में गैस इनहेल कर रहे हैं, एक में एक्सहेल कर रहे हैं, नेक्स्ट वन में एक्सहेल कर रहे हैं, तो फिशेज और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स वो कैसे कर रहे होंगे? शायद 2 times इन द सेम सेकंड, है ना? कुछ समझ में आ रहा है ना? जैसे वो डॉग नहीं करता रहता सारा टाइम ब्रीथ एट अ वेरी फास्ट रेट, वैसा ही, मतलब वैसा ही फास्ट रेट कंपैरेटिव टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स का भी ब्रीथिंग रेट फास्टर होता है। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? चले अभी आगे। ओके, सो the terrestrial animals use the oxygen of air of atmosphere for breathing and respiration. Thus, the terrestrial animals have an advantage over an aquatic animal in regard to obtaining the oxygen for respiration. That is, surrounded by the oxygen rich atmosphere. तो हमारे पास एडवांटेज ये है, हमारे पास बहुत सारा ऑक्सीजन है, which is 21% roughly of all the gases present around. और एक्वेटिक एनिमल्स के पास वो कम है, उनको उसके लिए स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ये खत्म हो गया। रेस्पिरेशन इन अमीबा यूनिसेलुलर है, पढ़ लिया था। सिंपल उसकी सेल मेम्ब्रेन से ही डिफ्यूज इन एंड डिफ्यूज आउट, राइट और नॉट? है ना? देखें इसमें कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ने का है क्या? One thing re-insisting here, an amoeba lives in water, और वो ऑक्सीजन इनहेल करेगा, उसे अपनी लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज करेगा और फिर उसे एक्सेल कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को सेल मेम्ब्रेन से ही बाहर। हम्म तो फिर बाकी कुछ और ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम प्लेनेरिया, ऑल्सो रिस्पायर बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, नोट कर लो तीनों का नाम। दे लास्ट यू 3 organisms that diffuse through their cell membranes, that is amoeba, paramecium, planaria. देखा है सबने? कोई डायग्राम बना सकता है पैरामीशियम का और प्लेनेरिया का? पैरामीशियम याद है किसी को? टैड स्लिपर। अच्छी नहीं बनी ना? ऐसा ही था ना? टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, Ma'am, paramecium का diagram is given in the book. अच्छा ठीक है। और यहाँ पर इसकी एक कैविटी होती है जिसे वो माउथ की तरह यूज करता है टू टेक इट्स फूड इनसाइड इट्स बॉडी, है ना? और जब भी पैरामीशियम बनाओगे कभी भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिस नहीं करोगे। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पैरामीशियम। तो ऐसे जैसे सन बनाते थे बचपन में, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाकर वहां लेबल जरूर करना है। ठीक है बच्चे? बाकी डॉट 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 साइटोप्लाज्म, कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, ये बन गया पैरामीशियम। और प्लेनेरिया कैसे बनता है? ऐसा है कि नहीं बच्चे? ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको स्क्रीन पे। मुझे थोड़े से इसके कान और बनाने चाहिए थे, कान जैसा स्ट्रक्चर, सॉरी। ये ठीक है, मैंने मिरर वाला गायब कर दिया, अच्छा नहीं था। सो दिस इज प्लेनेरिया। ठीक है बच्चे, याद आ गया? ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म, ड्रॉ कर लो इसको नोटबुक में, प्लेनेरिया को। अमीबा भी, पैरामीशियम भी, प्लेनेरिया भी, तीनों ड्रॉ कर लो। ऑल थ्री दोस रिस्पायर थ्रू like with simple diffusion.
बना लिया बच्चे? Yes, ma'am. चले अभी आगे। Okay. So in small single-celled animals such as amoeba, the volume of their body is so that oxygen can be introduced quickly into the whole body of the process of diffusion. Single-celled animals जैसे amoeba है। अच्छा, planaria is not a single-celled organism बेटा, ये एक flatworm होता है जो कि पानी में present होता है, water में, and it is of great danger to animals that are there in water. ठीक है? और पैरामीशियम भी पानी में होता है, बट वो सिंगल सेल्ड है। So single-celled animals such as amoeba, the volume of their body is so small that oxygen can be introduced quickly into the whole body by the process of diffusion. This is because due to the smallness of amoeba cell, the oxygen does not have to go so far, very far off now. But this is not so in the larger animals like earthworms, grasshoppers, fish, and man, etc. In large animals, the water volume of the body is so big that oxygen cannot diffuse into the cells of the body very quickly. This is because in these cases, the oxygen have to travel to very large distance to reach to each and every cell of the body. In large animals, there is a blood circulatory system to carry oxygen to all the parts of the बॉडी क्विकली। इसीलिए तो हमने बोला कि इसीलिए तो जो भी सिस्टम होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम वो थिन वॉल्ड होगा और इसीलिए वहां ब्लड सप्लाई होगा क्योंकि ब्लड विल टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर, क्योंकि साइज जो है वॉल्यूम जो है वो एनिमल का कंसिडरेबली बिग है देन अमीबा। The blood contains respiratory pigment which take up oxygen from the air and carry it to the blood cell. This will become more clear from the following example. Diffusion is insufficient to meet हमारा बड़ा multicellular organisms का requirement because the volume of human body is so big that the oxygen cannot diffuse into each and every cell very quickly. This is because oxygen will have to travel large distances then, which is not possible. So, diffusion being a slow process, we don't have that kind of respiratory system in us. On the other hand, the blood circulatory system in human carry oxygen to all the parts of the blood quickly and removes carbon dioxide simultaneously. Actually, human blood contain a respiratory pigment called hemoglobin, which carries the oxygen from the lungs to all the body cells very efficiently. So this is this hemoglobin which is present inside the discoidal shaped red blood cell of our blood, which is present in maximum numbers in our blood. इसीलिए our blood looks red. This has got great affinity for oxygen and this acts as an oxygen carrier. So it's like it has got 4 open sides. Hemoglobin has got 4 open sides. तो जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, इफ द साइड्स आर एम्प्टी, वहां पर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगी भी उन साइड्स पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहां पर एम्प्टी आउट करेगा, अपनी एम्प्टी साइड्स के अंदर ऑक्सीजन ट्रैप करेगा एंड इट विल टेक इट टू ईच एंड एवरी सेल स्लोली। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इट्स अ सप्लाई सिस्टम। हीमोग्लोबिन pigment is a supply system which is present there in red blood cells of our body, also called as erythrocytes. Erythrocytes 10th में आ गए हो तो अच्छे वर्ड्स यूज करो आरबीसी की जगह, ठीक है? ओके, now hemoglobin is present in red blood corpuscles. We will now discuss the process of breathing and respiration. मैंने ये बात कर ली ऑलरेडी, दोबारा से क्यों बात करें? इसमें क्या है ऐसा नया? डिटेल में बात कर ली तो ली कि मेम्ब्रेन उसकी थिन होगी, मॉइस्ट होगी। बस ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ अर्थवर्म नहीं, हो सकता है एग्जाम में नाम लीचेस भी आ जाए। तो सारे ऑर्गेनिजम्स एनसीईआरटी से भी ढूंढना नाम, जितने ऑर्गेनिजम्स के नेम गिवन है वो सब जरूर नोट कर लिया करो कि वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल नहीं देते हैं एग्जाम में।
ऐसे ये देखो, ये भी तो वही है, माउथ से वाटर अंदर जा रहा है और गिल्स, ये गिल्स का कवर है, ये गिल्स स्पॉन्जेस की तरह है और वहां से बाहर आ जाएगा वाटर, ऑक्सीजन डिफ्यूजन होकर। आ रही है ना बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? बात कर चुकी हूँ मैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ से करना है हमें कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम कल करेंगे। अभी तक ये जो पार्ट है इसे अच्छे से पढ़ना बेटा, ठीक है? और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस कल डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चा लोग? ओके मैम। लेक्चर समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट किसी का? नथिंग एट ऑल। चलो बाय बाय बच्चा लोग। थैंक यू मैम। मैम Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, बाय मैम।